Good, m- Good morning, student. This is Kekasha Banu, your teacher of accountancy, and today we will continue the chapter of your third reconstitution of partnership, change in profit sharing ratio. I hope you are healthy and safe at your home. In last class, whatever we have learned about the treatment of goodwill and the impact of goodwill onto the partner's capital account. We have also learned about that how the old partners or existing partner distribute the undistributed reserve, if any, or accumulated profit or loss. In that, we have studied two cases. One, when their partners want to distribute the reserve and accumulated profits among themselves, if then they have to distribute it in old profit sharing ratio. And the second case was that if they don't want to distribute any reserve or accumulated profit, they want to continue that amount of reserve and accumulated profit in the books. So the another way is that you find out the sacrificing or gaining ratio of partners, and whatever the amount is of reserve and undistributed profit, the proportionate of that sacrificing or gaining ratio they will get, which means whatever the gainer partner, that will be compensated to the another partner who sacrificed their share of interest in that proportion. Today, after watching this video, you will be able to understand how we reevaluate the assets and liabilities, because your firm is now again reconstituted. So in that, the values of assets and liability of your firm will be reevaluated. And next, you will going to understand and you will going to learn about the how to keep post journal entries for these revaluation account. And at last, you will going to understand that how to make a revaluation account. First of all, why we going to make a revaluation account? So we just have to know that whenever any agreement changes between the partners, so at that time जो बुक वैल्यू में आपकी असेट और लाइबिलिटी होती है, जो बुक वैल्यू में मेंशन होती है, वो एक्चुअली में एट दैट प्रेजेंट टाइम वो नहीं होती. इट कैन बी चेंज इन पॉजिटिव मैनर ऑल्सो, इट कैन बी चेंज इन नेगेटिव मैनर ऑल्सो. लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल कि आज हमने कोई असेट खरीदी है 5,000 में. हो सकता है कि कल हम लोग फॉर एग्जांपल आज हम लोग का मन किया, कल 1 साल बाद हम लोग का मन किया कि हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं. तो क्या 1 साल बाद भी उस असेट की वैल्यू 5,000 रहेगी? उस डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए और उसकी एक्चुअल वैल्यू घट जाए, या फिर हो सकता हो उसमें एप्रिसिएशन चार्ज हो जाए उसकी वैल्यू बढ़ जाए. सो एट दैट टाइप ऑफ चेंज PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी एंड असेट ऑन दैट डे मस्ट बी रिवैल्यूएटेड फॉर द एक्चुअल fairness between the existing partners. Now come to the point that at the time of changing profit sharing ratio of existing partners, assets and liability of a firm must be reevaluated because actual realizable value of asset and liability may different from their book value. जैसे कि हमने बोला फॉर एग्जांपल कि मशीनरी बुक वैल्यू आज है, बुक में वैल्यू आपकी 10,000 है, बट एक्चुअली में उस मशीनरी की वैल्यू 15,000 है. तो जो हमारा 5,000 डिफरेंस हो रहा है वो हमारा क्या है, फ़ायदा है. सो वो जो फ़ायदा है वो भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना, उसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, उसको हम देखना है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डे. Change in the assets and liability belongs to the period to change in profit sharing ratio and therefore it must be shared in old profit sharing ratio. क्योंकि हम उस दिन तक, उसके बाद हम अपना PSR चेंज करेंगे, तो at that day whatever the benefit we are getting from the revaluation of the asset or liability, so that benefit or the loss of that particular liability or asset they will beared by the existing partners by their old profit sharing ratio. Why? क्योंकि तब तक उनका जो शेयर ऑफ इंटरेस्ट है वो ओल्ड रेशियो में रहा है, और ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही फर्म ने जो भी काम किया है, असेट हो जाए लाइबिलिटी हो, सो जो भी डिफरेंट, जो भी फ़ायदा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो पुराने मतलब कि जो पार्टनर्स होंगे अपने पुराने शेयर में बेयर करेंगे. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
लाइक जनरल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि हम कैसे हम जनरल एंट्री में पोस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर आपकी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। यहाँ पे केसेस गिवन दिए हुए हैं। इंक्रीज, फर्स्ट इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन प्रॉफिट। नॉर्मली हम आप ये बस जान लीजिए कि अगर आपकी असेट की वैल्यू बढ़ी, ऑब्वियसली अगर बढ़ेगी असेट की वैल्यू तो आपके लिए फ़ायदा है, और अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कि आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो रही है, मतलब कि आपको पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, तो ये आपके लिए क्या है, एडवांटेज है या लॉस है? दैट इज़ योर एडवांटेज, इट मीन इट इज़ योर फॉर योर प्रॉफिट। सो for posting the revaluation account in journal entry, you just have to know that whatever the asset, if asset's value increases, so then asset is going to debit to revaluation account। now उसको journal entry के golden rule के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था, एक golden rule पढ़ा था कि जब भी asset increase होगी और liability decrease होगी तो वो क्या होगा, डेबिट में जाएगा। तो वही वाला गोल्डन रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि इफ़ असेट इंक्रीज़ हो रही है तो वो जाएगी डेबिट में, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो जाएगी डेबिट में, वो पर्टिकुलर लायबिलिटी क्या जाएगी, डेबिट में जाएगी। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? सिंस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल अबाउट द प्रॉफिट और लॉस। इन दिस रिवैल्यूएशन हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को कंसिडर करने के लिए कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन इज़ ऑल अ नॉमिनल अकाउंट, वी नो, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ फ़ायदा हो रहा है तो वो अकाउंट क्रेडिट जाएगा, और नुकसान हो रहा है उस अकाउंट का तो विच मीन्स वो अकाउंट का अगर लॉस नेचर है तो वो जाएगा डेबिट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में नेचर में क्या आ रहा है, फ़ायदा आ रहा है, एडवांटेज आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। सो सेम एज इट इज़, तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे सिर्फ असेट के लिए दिया हुआ है कि इफ़ असेट इंक्रीज़ कर रही है तो उस पर्टिकुलर असेट की अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल असेट की पहले 5,000 वैल्यू थी, आज प्रेजेंट टाइम में जब उसको रिवाइज वैल्यू आई वो 8,000 हो गया, तो यहाँ पे जो असेट के डेबिट के सामने कितना अमाउंट जाएगा, 8,000 माइनस 5,000, दैट इज़ योर 3,000, विच मीन्स ये अमाउंट जाएगी। ओके, ना 5,000 8,000, दैट इज़ द डिफरेंस वट एवर यू आर गेटिंग, आइदर यू आर प्रॉफिट गेटिंग, आइदर यू आर लॉस बेयरिंग, सो दैट डिफरेंस विल बी गोज ओवर इन दिस जनरल एंट्री। नाउ सेकेंड केस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। ऑब्वियसली अगर आपकी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपको नुकसान हो रहा है, तो वो असेट कम हो रही है, तो असेट वेन एवर एसेट डिक्रीज देन दैट असेट विल गोज इन क्रेडिट अकाउंट, दैट इज टू असेट, और बाय द वे ऑफ बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ revaluation account, because since it is a nominal account, loss and expenses will goes debit, so revaluation account goes in debit side. In same as it is in performance, if 5,000 of your before value of assets and now 8,000 value, so the amount will goes 3,000 in this, in front of revaluation and in front of asset account. Now third case is for increase the value of liability. Again, if your responsibility value increases, which means you have to now pay more, so this is a loss and this is an expense for you, so where it should go for this debit side, which means for the sense of the point of view of revaluation. Again, liability, whenever the liability increases, सारी liability कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है, और हमारा गोल्डन रूल कहता है कि liability increase होगी तो वो क्रेडिट में जाएगी, तो दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी विल गोज इन क्रेडिट। आपका जनरल एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। सेम वही करना है आपको, एक्चुअल लायबिलिटी का अमाउंट नहीं करना, आपको डिफरेंस करना है, जो पहले था जो बाद में हुआ, अगर बढ़ गया है तो डिफरेंस आपकी पर्टिकुलर वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट केस इज फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब आपको पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही, इट मीन इट इज़ एडवांटेज फॉर यू। अगेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवैल्यूएशन इट इज़ नॉमिनल, इट इज़ अ profit for your sense, for your point of view, so it will goes in credit side revaluation, and liability decreases from the way of golden rule, whenever the liability decreases that liability goes in debit side, then the general entry will goes in liability account debit to revaluation account. Further moving on, there is fifth condition. Now after revaluate and after all posting the thing, you get some difference, which means कि आपने
सारी चीज़ पोस्ट कर दी, डेबिट साइड सारी असेट रिवाइज वैल्यू, डेबिट साइड पोस्ट कर दी आपने, क्रेडिट साइड पोस्ट कर दी सारी लाइबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यू। सो आफ्टर एंड ऑल आप क्या देखोगे कि पर्टिकुलर कुछ एक्सेस में बच रहा होगा, विच मीन कि सारी इनकम एक तरफ, सारी एक्सपेंसेस एक तरफ, दोनों को बैलेंस करेंगे तो जो एक्सेस अमाउंट में आ रहा है, जो डिफरेंस अमाउंट में आएगा, अगर पॉजिटिव में आ रहा है विच मीन्स कि इनकम आपकी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, टोटल इनकम, सारी इनकम, रिवाइज वैल्यू ऑफ इनकम। एंड देन अगर रिवाइज वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस आपके लॉस ज़्यादा आ रहा है तो आपको टोटल लॉस हो रहा होगा। इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉफिट विच मीन्स सारे रिवाइज वैल्यू के बाद आपको एक्सेस में अमाउंट पता चल रही है कि मतलब कि आपके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो दैट एक्सेस अमाउंट विल गोज इन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स इन डेबिट साइड। यू कैन से दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एक्सेस अमाउंट वो जाएगा वो पार्टनर्स को मिलेगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ओवरऑल पार्टनर्स की कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होगी तो वो अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। सो यू कैन से दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आएगा वो अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्दर मूविंग ऑन दैट नेक्स्ट, इफ़ इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, अगर रिवैल्यूएशन करने के बाद अगर आपको लॉस हो रहा है तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, डायरेक्टली उसकी अपोजिट, प्रॉफिट के अपोजिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लॉस है तो विच मीन्स कि आपके पार्टनर्स को बॉन्ड करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, तो उनकी कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल में से वो पैसा निकलेगा, तो कैपिटल की अमाउंट कम होगी पार्टनर्स की, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट में जाएगा, which means partners capital account debit to revaluation account. Further, we will know that how to make actual revaluation account. Since again we have talked earlier, revaluation account is a nominal account, which means it is not a real account, it is not a personal account. So according to the golden rule of general or according to the golden rule of ledger, in nominal account whatever the profit or gain goes credit side and whatever the loss or expenses goes in debit side. So you can watch, you can see on your window there is a ledger of revaluation account. revaluation account आपको सेंटर में लिखना है, revaluation account, and just below revaluation account you have to mention the date of the particular making of revaluation account, like at the date of this. After this you can say there are 4 columns. First is you are watching in left side, that is your debit column, DR, that is debit amount. In right side you are watching a credit column, same as well as we have did it earlier so many time as it. So in debit side we post all the loss and expenses. You can say loss or expenses based on assets or liability, whether on assets or liability goes debit, and whatever we are getting advantage, that is gain or profit, that difference will goes in credit side. Suppose your asset is declining by 3,000 rupees, so the asset value is declining, which means it is loss for you, so that value goes in two side, that is two particular asset name. Let's suppose machinery value is declined by 3,000, so that 3,000 will be goes in to machinery, and in the column of debit side you have to post 3,000 rupees. Okay, let's suppose if your value of liability, let's suppose the creditor amount, we have revised the amount of creditor and we found that the value of liability has increased by 5,000. So what you have to do, just you have to do post it 2, it will goes in two side of this revaluation account, and you have to mention 2 liability increase, you can say 2 creditor increase, and in front of creditor you have to mention 5,000 amount, whatever the increment of liability amount is it. Next, if your asset value is increases, so then it goes in credit side by asset, that particular asset name, and the whatever the increased amount, not the
new amount, not a revised amount. That will be the revised amount. You have to post it over here, the increase amount, that is difference of old amount and the new amount. Okay, same as it is, if your liability decreases, it will go in credit side. Sometimes happens that some liabilities or asset was omitted to posted in your actual books of account. Omitted means कि छूट जाती हैं, कुछ बुक्स में अकाउंट लिखना है. फॉर एग्जाम्पल एक पुराना टाइपराइटर था, हमने बुक्स में नहीं चढ़ाया, बट आज हमने चढ़ाया है, लेकिन वो बुक टाइपराइटर इज एन असेट ऑफ योर असेट ऑफ योर फर्म. सो आज हम उससे कुछ अमाउंट रियलाइज़ कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपकी असेट है और लायबिलिटी है जो छूट गई है, तो आप उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब कि उसके जो भी उससे आपको फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल कुछ अननोन क्रेडिटर्स थे, आज उन्होंने क्लेम कर दिया है, तो वो अननोन क्रेडिटर क्लेम भी क्या आ जाएगा आपकी, क्योंकि आपका क्रेडिटर क्लेम कर रहा है तो आपके लिए नुकसान है ऑब्वियसली, तो वो आपका कहाँ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में. सेम एज इट इज़ जो मैंने एग्जांपल लिया था कि आपका टाइपराइटर आज आपको फाइन मिला है जिसकी वैल्यू आपकी 5000 आपकी पता लग रही है, तो वो अनरिकॉर्डेड असेट है और वो आपकी बाई साइड आ जाएगा, क्योंकि असेट है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, उसकी वैल्यू अगर आप उसको रियलाइज़ करेंगे, उसको बेचेंगे तो उससे कुछ पैसा मिलेगा, तो इट्स मीन इट इज़ एडवांटेज फॉर यू, सो इट विल गोज इन क्रेडिट साइड ऑफ योर असेट. तो अब याद रखते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट है तो क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट साइड. ओके, देन आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंसिंग दिस अकाउंट. बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज कि अभी ये अकाउंट नहीं है, ये चीज़ नहीं है, सपोज कि यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट आ रहा है क्रेडिट साइड 10,000, दैट इज़ 10K, और डेबिट का जब आपने टोटल किया, दोनों साइड तो आप 10,000 लिखिए, डेबिट का टोटल किया तो आपका 9,000 आ रहा है, 9,000. तो टोटल में तो 10K लिखेंगे, बट जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, 1,000 का. उस 1,000 को हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे, जैसे कि हम लोग P&L अकाउंट में निकालते थे. तो अब यहाँ पे पार्टनर्स हैं, तो जैसे हम लोग एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता था आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. सेम एज इट इज़ जो 1,000 का बैलेंस आएगा, 1K का बैलेंस आएगा, वो ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसमें आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखना है, जो पुराना है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना है. सपोज कि इनका ओल्ड रेशियो 2:3:2 था, तो आपको 2:3 और 2 में डिवाइड करना है, ना कि न्यू रेशियो 1:1:1 अगर गिवन है तो. मैंने एग्जांपल दिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में. ये आपको याद रखना है, टोटल में हमेशा अमाउंट सेम रहती है, और टोटल में वही अमाउंट रहती है जो ज़्यादा होती है, जिस साइड ज़्यादा हो, आइदर डेबिट और आइदर क्रेडिट. क्रेडिट साइड ज़्यादा है टोटल अमाउंट, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 10,000 का, और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड आ रहा था 9,000, तो विच मीन्स कि 10,000 ज़्यादा है, तो दोनों साइड 10,000 लिखा जाएगा, जो कि हमारा इनकम साइड की वैल्यू ज़्यादा हो रही है. तो इसमें प्रॉफिट आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो आपको अमाउंट डेबिट साइड लिखनी है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द बैलेंस इज 1,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सपोज 1,000 को हमें पुराने ओल्ड रेशियो में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, तो हम कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल A एंड B हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो विच मीन्स इक्वल. तो 1,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, विच मीन्स हाफ ऑफ सिंपली, तो ईच पार्टनर्स गेट 500 रुपीज सिंपली. ओके, if now another condition arise, if let's suppose your debit side column is amount is more than the comparison of credit side, so then it happen loss. obviously अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम एज इट इज़ जैसे हमने लास्ट टाइम किया था प्रॉफिट को ट्रांसफर करने में. जिस साइड ज़्यादा है, अगर डेबिट साइड की साइड ज़्यादा है तभी लॉस आ रहा है. तो सपोज अब डेबिट साइड की 10,000 है और क्रेडिट साइड की 9,000 टोटल करने पर आ रहा है,
तो 1000 जो बैलेंस आ जाएगा वो लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वली पार्टनर्स में, अगर उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग इक्वली गिवन है, वरना ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको इक्वल डिवाइड करना है। ये बात याद रखना है, जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, वेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन इन बुक्स, की बुक्स में ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आप जो रिवाइज वैल्यू करते हो एसेट और लायबिलिटीज़ की, उसकी दो तरीके से पोस्टिंग हो सकती है। पहला कि आपके पार्टनर्स चाहते हैं, दे वांट टू रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी शोन इन द बुक्स, वो अगर दे वांट टू दैट रिवाइज्ड वैल्यू वांट टू शो देयर इन एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड आइदर दे वांट इट, दे डोंट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। तो ये दो वेज से आपकी क्या पर्टिकुलर जर्नल एंट्री बनेगी और क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इफ़ यू हैव इन दिस you can ask me to me without any hesitation. Let's sum up. Let's call up again what we have learned today. We have learned about the treatment of particular treatment of impacts of revaluation account, making of revaluation account, general entries for the revaluation account, and how to make a revaluation account. So regarding this, if you have any query, you can ask me. In next section we will learn the two ways of posting of revaluation account or revised value of liabilities and asset. Till then, have fun at your home and stay safe.